Hello, everybody. I'm Ashish Thomas. I'm an entrepreneur and a pastor, and I'm based out of Dubai. I just want to share portions of the scripture and some things of my life and what's happened to me so that may be a blessing to you. Well, I was born again when I was very young. I was probably 7 to 8 years old. I grew up in a good church, raised up to know things of God, and I loved God in my own way. And I went on later on to go to Bible school, graduated out of Bible school, and experienced water baptism, spirit baptism, spoken tongues, all that kind of stuff. But somewhere along the lines, I was disillusioned and I was not really content with my life. And even though I was hungry for God, I wanted to serve God. We had reached a point where we just got married, and my marriage was all in total chaos. And it was like our marriage was falling apart in the first year. Though my wife and I loved each other, we knew it was God's will, but our home was just falling apart. And that's when I was so disillusioned, and I began a quest and searching for something that I couldn't find. And that's when my quest for the Holy Spirit began. And somehow God was good to me that He led me to the Holy Spirit. And then when the Holy Spirit became real to my life a few months later, it transformed everything about me. It transformed me as a person. It transformed my family. It transformed my marriage. It transformed me to become successful in whatever I do, and gave me great wisdom and insights into the Word of God. So I'm going to endeavor today to try to bring to you some of the truths about the Spirit of God, who is so vital for your life and my life. I want to start first with John 15:26. When Jesus was on the earth, He said, "But when the Comforter is come, whom I shall send you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me." शुरुआत जो है मैं उस वचन से करना चाहूँगा जो पहले यूहन्ना के 15 अध्याय के 26 आयत में जो खुद यीशु मसीह ने कहा जब वो इस संसार में थे, और वो वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। The problem with us Christians, though we love God and love everything about the Scripture, we face is that very often we cannot relate with the Holy Spirit, because the Bible, showcases Him sometimes as the Holy Ghost, sometimes as the Holy Spirit, and so the word ghost and spirit is something that causes us to not be able to relate with Him. और फिर हालांकि जो यीशु के साथ हमारा जो एक संबंध बनता है, बहुत बार वचन के साथ भी जो है हमारे संबंध बन सकता है, लेकिन जहाँ तक पवित्र आत्मा का सवाल आता है, तो इस पवित्र आत्मा इस शब्द से जो है बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसके साथ जो जोड़ होना चाहिए हमारा वो नहीं बना पाते। Because we're able to relate with the Father, God the Father. आसान है परमेश्वर पिता के साथ कभी कभार जो है अपने संबंध को बनाना। Because we know what a father is. We sometimes are fathers, or we know what a role of a father is. और वो इसलिए क्योंकि हम जो है पिता को जानते हैं, हम जानते हैं कि पिता कैसा होना चाहिए, पिता का जो कार्यभाग होता है वो क्या होता है। Similarly, God the Son, we are able to relate with. उसी प्रकार से परमेश्वर का जो पुत्र है उसके साथ भी जो है हम अपने संबंध को जो है बना पाते हैं, जुड़ा पाते हैं। So we are the sons, or we know what a son is. और फिर हम खुद जो है बेटे हैं, तो हम जानते हैं कि एक बेटा क्या होता है। So we're able to relate easily with God the Father and God the Son. तो फिर जहाँ तक पिता का सवाल है, परमेश्वर पिता का सवाल है और परमेश्वर के पुत्र का सवाल है, हम उनके साथ आसानी से जो है अपने आप को जोड़ सकते हैं। And then again, we have the problem is the different symbols that are used to describe the Holy Spirit. और फिर और एक दिक्कत जो हमारे सामने आती है वो ये है कि अलग-अलग जो चिन्ह जो बताए जाते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, जिसके साथ हम चाहते हैं कि हम अपने आप को जोड़ दें। So we don't realize, who He really is. तो पवित्र आत्मा के विषय में जब हम बात करते हैं तो पता नहीं चलता कि वो आखिर में क्या है। Is He a dove? ये क्या वो एक कबूतर है? Is He a wind? क्या वो एक हवा का झोंका है? Is He fire? क्या वो एक अग्नि है? Is He oil? और तेल है। So all these different symbols that denote or resemble the Holy Spirit. और ये सारे चिन्ह जो है जो पवित्र आत्मा के प्रतीक है या उसके विषय में बोलते हैं, Sometimes confuse our minds. बहुत बार हमारे दिलो दिमाग में गड़बड़ी पैदा करती हैं। But again, there are symbols that resemble Jesus too. लेकिन अगर हम देखने जाए तो यीशु के विषय में भी बताया जाता है कि ऐसे कुछ चिन्ह हैं जो उसके विषय में कहते हैं। We know He's called the Lamb of God.
और हम सब जानते हैं कि उसे परमेश्वर का मेमना बताया गया है, But somehow, because of the word son, लेकिन क्योंकि वो जो शब्द पुत्र आता है, we were able to relate to him. तो किसी ना किसी प्रकार से हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं, And we don't think of him as just a lamb. और फिर हम उसे केवल जो है एक मेमना के रूप में जो है उसे ना तो देखते ना समझते हैं। And then again, there's the other part of it where, where God is a triune God. और एक दूसरा भाग भी होता है जहाँ कहते हैं कि परमेश्वर एक त्रयी परमेश्वर है, Even though he is one person, हालांकि वो एक होने के बावजूद, there's these three different personalities that you see. एक होने के बावजूद भी तीन प्रकार के अलग-अलग व्यक्तिमत्व जो उनके होते हैं। And and we don't realize that the Holy Spirit is equally. तो फिर हम इस बात को समझते नहीं कि पवित्र आत्मा जो है उन तीनों में जो है समानता में है, God. परमेश्वर। So, there are things when you talk about God, तो जब परमेश्वर के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, there are things that make God God. तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा देती हैं। We can't just say that this is God and make something God. तो हम ये नहीं कह सकते बस ये एक परमेश्वर है और बस इसी को हम परमेश्वर बनाते हैं, There are character attributes for anything. क्योंकि किसी भी बात के लिए जो है उसकी कुछ विशिष्टताएं होती है, गुण विशेषताएं होती हैं। Like, for us to be a human being, जैसे एक मनुष्य के लिए, it's different. मनुष्य के लिए बात अलग होती है। Like, difference between an animal and a human being. जैसे जो है एक अलगाव जो आता है किसी पशु और किसी मानव में, A difference between a man and a woman. और जिस प्रकार से एक अलगाव होता है स्त्री और पुरुष में। There can be a lot of common things, but there are unique things that make one person or personality stand out. और हो सकता है कि समानता इन दोनों में काफी हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक अलगाव जो है इन दोनों में पैदा करते हैं। Similarly with God. उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ भी। One is God is the maker of everything. पहली बात तो यह है कि परमेश्वर जो है सारी बातों का निर्माण करता है। So for someone to qualify for the position of God, और अगर किसी को जो है परमेश्वर के इस दर्जा को अपने आप को पात्र ठहराना है, he should be pre-existent before anything was made. तो उसका मतलब यह है कि वो जो है किसी बात की उत्पत्ति से पहले उसका अस्तित्व होना जरूरी है। And that's when you see in Genesis, when you open the Bible, तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि जब पवित्र शास्त्र को खोलते हैं उत्पत्ति की इस किताब में, you'll see that one of the first attributes that are shown is the fact that the Spirit of God was there. और पहला जो गुण विशिष्टता है वो ये बात लिखी हुई है कि पवित्र आत्मा तब भी जो है वहां था। He moved upon the face of the waters. और लिखा हुआ है कि वो जो है सारे जो है उस जल पर मंडरा रहा था। So you see him being pre-existent. तो हम देखते हैं कि वो समय से पहले उसका अस्तित्व था। Before creation started, निर्मित की होने से पहले जो वो था, you see his existence. और हम उसके अस्तित्व को देखते हैं। Then you see his involvement और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका कार्यभाग रहा in various things of creation. और निर्मित या रचना के अलग-अलग हिस्सों में। And the other attribute you see is that he's everywhere. और उसकी और एक गुण विशेषता हम देखती है कि वो सर्व जगहों पर होता है। The psalmist says भजन लिखने वाला कहता है that if I make my bed in hell, और वो कहता है कि अगर मैं जो है नरक में भी जो है अपनी शैया को बनाऊं, but your spirit will be there. तब भी जो है तेरा आत्मा वहां होगा। So you see that the Spirit of God is pre-existent. तो हमने इस बात पे गौर किया कि पहले से ही पूर्व वो था। He's omnipresent. He's everywhere. वो सर्वव्यापी है, हर जगह पर मौजूद है। That's what the psalmist said. Where can I hide from your Spirit? और इसीलिए भजन लिखने वाला कहता है कि मैं उससे कहां छिपूं। Then you see Jesus say He will lead you into all truth. और फिर यीशु ये भी कहता है कि देखो वो जो है जब आएगा तब सारे सत्य में तुम्हें ले जाएगा। Where you see that He knows things. और फिर हम देखते हैं कि वो सारी बातों को जानता है। You cannot hide anything from Him. और उससे जो है कोई बात छिपी नहीं रहती। He's the one who searches our hearts. और ये वो है जो हमारे हृदय की भी जांच करता है। So these different attributes show His Godhead. तो ये सारे जो अलग-अलग उसके जो विशेषताएं हैं वो बताते कि वो भी जो है परमेश्वर है। I want to take you to Acts 5:3. और हम प्रेरित 5:3 में से जो है आपको बताना चाहेंगे। 3 and 4. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God.
और फिर प्रेरित 5:3 में जो इस प्रकार से लिखा है, फिर पतरस जो है अनन्यास से कहता है कि ऐसा क्यों हुआ कि शैतान ने जो है तुम्हारे मन को इस प्रकार से भर दिया कि तूने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो है झूठ बोला है। क्योंकि जब वो जगह जो है, जो भूमि जो है जब तुम्हारी थी, तो क्या उसकी कीमत भी क्या तुम्हारी नहीं थी? तो ऐसा क्यों तूने किया कि ये सारी बातें तुम्हारे अपने मन में जो है तुमने छिपा कर रखी? क्योंकि तूने मुझसे नहीं, मनुष्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। So here you see Peter relating to the Holy Spirit as God. और फिर हम यहाँ देखते हैं कि पतरस जो है पवित्र आत्मा को परमेश्वर का दर्जा दे रहा है। Then you see the Holy Spirit's involvement with the scripture. और फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का वो काम जो वचन के साथ होता है। In 2 Peter 1:21, 2 पतरस के 1:21 में it says, "For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." और 2 पतरस 1:21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पुराने समय में जो है भविष्यवाणी जो है वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं आई, लेकिन पवित्र जन जो है जैसे परमेश्वर ने उन्हें बोला, वो पवित्र आत्मा से जो है बताकर जो है वो बोल रहे थे। So you see the Holy Spirit's involvement also with the birth of the scriptures. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वचन के साथ भी जुड़ा हुआ है। Then you see the Holy Spirit's involvement with the resurrection in Romans 8:11. और फिर रोमी 8:11 में हम देखते हैं कि जहां तक पुनरुत्थान का सवाल है, पवित्र आत्मा उसमें भी जो है जुड़ा हुआ है। And it says, "If the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the spirit who lives in you." और फिर रोमी 8:11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अगर वो आत्मा जिसने यीशु को जो है मरे हुओं में से जिलाया है, तो वो क्रिस्त ने जिसने मरे हुओं में से उसको जिलाया, क्या वो तुम्हारे नाशवंत देहों को भी जो है उस आत्मा से के साथ क्या वो जिलाएगा नहीं? Then if you go down to 1 Corinthians 2:9 and 10, और अगर और जो है वचनों को देखेंगे तो पहले कोरिन्थ की 2 अध्याय की 9 और 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। it says, Paul speaks about the things which eye has not seen, nor ear heard, nor entered into the heart of man. But he says these things are revealed by God's Spirit. और फिर पौल कहता है इस वचन में पहले कोरिन्थ 2 9 और 10 में कि आंखों ने ना देखा, ना कानों ने सुना, ना मनुष्य के चित्त में वो बात आई है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी बातें जो अपनी आत्मा के द्वारा जो है प्रकट की, क्योंकि आत्मा सारी बातों को खोजता है। And then again we see the power of the Holy Spirit very visible in Genesis when he talks about the world being in chaos and darkness and void. और फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति में भी जो उस पवित्र आत्मा का जिक्र हुआ है कि सारी पृथ्वी जब बेडौल थी और शून्य थी, निरंकार थी, तब पवित्र आत्मा का कार्य क्या रहा? It was the Spirit of God that was moving on the water, on the face of the waters. ये पवित्र आत्मा था जो उस समय भी जो उस बेडौल पृथ्वी के जल पर जो मंडरा रहा था। And he's the one who changed that chaos and void and darkness into something beautiful. और सारा वो जो बेडौलपन था, सारा वो जो निरंकार था, उन सारी बातों को पवित्र आत्मा ने बदल दिया है। Job 33:4 अय्यूब 33:4 में says, "The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life." लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांसों ने जो है मुझे जीवन दिया है। Again in Psalm 104:30 it says, "Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth." और भजन संहिता 104:30 में लिखा हुआ है कि तू अपनी आत्मा को भेजकर जो सारी बातों की निर्मिति करता है और पृथ्वी पर सारी बातों को नया बनाता है। And so when you see, with all these different scriptures, it shows you the fact that the Holy Spirit is God. और इन सारे वचनों में से एक बात जो है दर्शाई जाती है कि पवित्र आत्मा जो है वो भी परमेश्वर है। And all these proofs direct you to show you his different characteristics, that he's equally involved in every aspect. और सारी बातें जो इसकी गुण विशेषताएं जो है इस बातों को दर्शाती है कि वो भी जो है परमेश्वर का एक भाग है। But the enemy is trying to blind our eyes. लेकिन जहां तक शत्रु है वो हमारी आंखों में जो है धूल झोंकना चाहता है। Because he tries to prevent us from knowing him. क्योंकि उसकी यही तरकीब होती है कि हम पवित्र आत्मा को न जान पाएं। Because he's the one given to the church. क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो मंडली के लिए दिया गया है। He's the one who leads us into truth. ये वो है जो हमें सारे सत्य की ओर ले जाता है। He's the one who shows us things to come.
और ये वही पवित्र आत्मा है जो सारी बातों को दिखाता है जो आने से पहले। He's the one who gives comfort to us. और ये वही पवित्र आत्मा है जो हमें सांत्वना भी देता है। So with all these roles that he has, तो ये सारे जो उसके कार्यभाग अलग-अलग होते हैं, but when we do not know how to engage it लेकिन जब पता नहीं चलता कि उसको हम कैसे अपने जीवन में शामिल करें or receive from it, या फिर कैसे उसके पास से स्वीकार करें, we end up losing. तो फिर ऐसा होता है कि हम जो है हार जाते हैं। The other problem was the fact that many of us are afraid to go next to him. और एक परेशानी ये होती है कि जब पवित्र आत्मा का जब चर्चा होता है तो हमें एक डर सा लगता है उसके पास जाने के लिए। Because, we don't know if he's a person or if he's an it. और फिर जो है हम इस बात को समझ नहीं पाते कि क्या वो एक व्यक्ति है, क्या कोई वो एक व्यक्तिमत्व है। So, is he a force? Is he a person? कि क्या वो जो है एक बल है कि क्या वो एक व्यक्ति है। So there's one aspect of the fact that now we've made clear that yes, he is God. तो एक बात तो हमने आज स्पष्ट कर दी कि हाँ वो ईश्वर है। He is worthy of worship. He is worthy of honor and reverence. वो हमारे आदर, हमारे सम्मान, हमारे स्तुति के योग्य हैं। And the fact that we should draw to him because he's been given by Jesus and a gift from the Father for us as Christians today. और सच्चाई ये है कि हमें उसके पास जो है करीब जाना है, उसके करीब और जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है उसे हमें दिया है ताकि वो हमें पिता के और भी ले जाएं। But the problem is, again, there's another fear that blocks us from going next to him. लेकिन और एक डर जो है मनुष्य के जहन में आ जाता है ताकि हम उसके पास न जाएं। Because you can say things against Jesus and seem to get away. क्योंकि एक ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर यीशु के विषय में अगर हम विरोध में कुछ बोलते हैं तो हो सकता है हमारी माफी भी हो। You can crucify him and he says, forgive them. और अगर यीशु को जैसे क्रूस पे चढ़ाया गया और तब भी उसने कहा कि उन्हें तू क्षमा कर। The Father also shows his, benevolence and kindness and forgiveness during the time of Moses and on. और फिर परमेश्वर पिता ने भी जो इसी प्रकार की दया, इसी प्रकार की उसकी करुणा जो है बताई है मूसा के समय से भी। But then there's this verse that says if you blaspheme against the Holy Spirit, you'll never be forgiven. और वो फिर ये भी वचन में लिखा हुआ है कि लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर आप कुछ कहते हैं तो ये आपको कतई क्षमा ना होगी। And then there's this fear, what if I blasphemed, or have I blasphemed? And so we like to stay away from it. और फिर क्योंकि एक डर सा लगता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो है कुछ बोलने के लिए, इसलिए इस डर के कारण हम उससे जरा दूर ही रहना चाहते हैं। And so let's not go there because this is dangerous. और फिर हमें मन में ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो गलत होगा, इसीलिए हम इस डर के कारण जो है दूर रहते हैं। But let me set this straight and help you. तो इस बात को हम सीधाई से बताकर इस बात को हम आपको समझाना चाहेंगे। I'm absolutely sure that if you're watching this, और मैं इस बात से बिल्कुल शाश्वत हूँ कि अगर आज आप इसे देख रहे हैं, you've not blasphemed the Holy Spirit. तो आपने जो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई बात नहीं की है। Because when people blaspheme the Holy Spirit, क्योंकि जब लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलते हैं, the heart becomes so hard. तो तब होता है जब उनका मन बहुत कठोर हो जाता है। And you get so demonized that you stay away from the things of God. कि आपका जीवन जो है वो इतना शैतानी बातों से भर जाता है कि आप प्रभु से भी बहुत दूर चले जाते हैं। And so you watching this shows that you're hungry and you want the things of the Spirit. और आप जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर पवित्र आत्मा के प्रति अगर आप में ये भूख, अगर आप इस चीज को चाहते हैं, So if you've been battling this thought that maybe I have blasphemed the Holy Spirit, और अगर हो सकता है कि ये विचार जो है आपके दिलो जहन में जो है एक प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ है कि कहीं मैंने तो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ किया है, right now is the time for you to receive that freedom तो यही वो समय है जब आपको जो इसमें से मुक्ति मिल सकती है that you have not, जो पहले आपको नहीं मिलती थी। and you are free right now. लेकिन अब इस समय जो है आप बिल्कुल मुक्त हो, आजाद हो। And say this with me. और आप मेरे साथ ही मिलकर कहो, Say thank you, Holy Spirit, कहो धन्यवाद पवित्र आत्मा that you are here right now, कि तू हमारे बीच में इसी समय मौजूद and I है। choose right now और आज इसी समय में चुनता हूँ to reject the lie I believed. कि जो जिस झूठ को जो है मैंने आज तक उस पे यकीन किया उसको मैं आज नकारता हूँ। I thank you for your love towards me, और जो प्रेम तूने मेरे प्रति किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता and I हूँ। receive your love towards me right now. और तेरा प्रेम जो मेरे प्रति है इसी क्षण उसे मैं स्वीकार And here I am, प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ ready to start a new journey with you. ताकि तेरे साथ एक नया सफर मैं आरंभ करूँ। Amen. आमीन।